Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, in the previous lecture I have shared guidelines about the revision guide which will help you prepare well for the ASM of unit 2. So here is the picture of revision guide in front of you. You can refer SP29 for the same. Today we shall start revision of chapter number 1. So which topics we are going to cover are here. Number 1, irrational numbers. Number 2, real numbers and their decimal expansions. Then real numbers on number line. Fourth, operations on number line. And then laws of exponents for the real numbers. Students, first of all you must know that there are how many sets of numbers. First is natural numbers, then whole numbers, then integers, and then rational numbers. Means you can say that in rational numbers all these numbers lie, or in integers all these numbers lie, and in whole numbers all natural numbers lie. And rational numbers can be represented in the form of P over Q, where two conditions are there. P and Q are not integers and second Q should not be equal to 0. जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो एक इंटीजर नंबर ही होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा. The next topic is how will you represent rational numbers on number line. For this you can refer SB2 from your supplementary book. Here you can see if a negative rational number is given to you, it always lies on the left hand side of 0. And if it is a proper fraction, it will always lies between 0 and -1. But if it is a improper fraction, then it would lie between any of the numbers which we will get after changing it into the mixed fraction. For any positive number given to you, how will you represent it on any line? First of all, it is compulsory to check whether the number is in lowest form or not. If it is already in lowest form, then you can represent directly. But if it is not in the lowest form, then you have to firstly convert it into the lowest form, and hence you have to represent on the number line as it is given here in front of you in example 4. 12 by 16 is changed into its lowest form, that is 3 over 4, and it is a proper fraction, so we shall represent this between 0 and 1. You know the denominator is 4, so we shall divide the division of 0 and 1 in 4 parts. That is part number 1, part number 2, part number 3 and part number 4. So it is divided in 4 parts and you will mark them as 1 over 4, 2 over 4, 3 over 4, and last will be 4 over 4, that will be equal to 1, hence 3 by 4 is the number. Next we shall take recap of finding rational numbers between other two rational numbers. We have two methods for this. First is average mean method and second is common denominator method. Watch this video to know more about these methods. The numbers between half and 3 by 2. We start with finding the mean of the given rational numbers. Here, the mean is 1. This is how we get our first rational number. We can find the second rational number by finding the average of the answer from the previous step and any one of the original rational numbers. So, in this case, either we can find the mean of 1 and half, which is 3/4, or the mean of 1 and 3 by 2, which is 5 by 4. On plotting the numbers on a number line, they come in between half and 3 by 2. In a similar manner, we can go on finding the average
of two rational numbers to find a new rational number. There are infinite rational numbers between any two given rational numbers. So that was the method, that is average or mean method to find rational numbers between other two rational numbers. Next method is common denominator method. Have a look on this video. Let us recall its steps to find five rational numbers between 1 by 3 and 5 by 7. The first step is to find the equivalent rational numbers of the given rational numbers such that their denominators are the same. Here, we are finding the equivalent rational numbers of 1 by 3 and 5 by 7 such that their denominator is 21. The equivalent rational numbers that we get are 7 by 21 and 15 by 21 respectively. Now, we have to find five rational numbers between 7 by 21 and 15 by 21. But how will we do this? We simply list the required number of rational numbers lying between the two equivalent rational numbers found in step 1. So we can say that 8 by 21, 9 by 21, 10 by 21, 11 by 21 and 12 by 21 lie between 7 by 21 and 15 by 21. And we are done. Isn't this method quicker than the previous one in terms of giving results? What if we are asked to find more rational numbers, say 10 rational numbers between 1 by 3 and 5 by 7? Students, we can find as many rational numbers as needed by finding the appropriate equivalent rational numbers of the two given rational numbers. Observe how we have found the equivalent rational numbers of 1 by 3 and 5 by 7 with the denominator as 42. This will help us find more rational numbers between 1 by 3 and 5 by 7. You have now learned to use the common denominator method to find as many rational numbers as needed between any two given rational numbers. Happy learning! So this method was common denominator method, in which the denominators are different and hence we can change that denominators, or we can make them same by taking the LCM and finding as much numbers we required or we been asked. Moving on further topic, we'll have a recap that what are the decimal expansions of rational numbers. Here is a flowchart on the screen which shows decimal expansions of numbers. बेटा दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास पूरा का पूरा डिवीजन सॉल्व हो जाता है और रिमाइंडर कितना आता है, 0. मीन्स द कोशिएंट टर्मिनेट्स, कोशिएंट जो है वो रुक जाता है. But in non-terminating decimal expansion, the remainder doesn't become 0. Division process continued होता रहता है, चलता रहता है and the quotient do not terminates. Further non-terminating में हमारे पास दो types हैं. Number 1 recurring, इसे हम repeating भी बोलते हैं, और दूसरी है नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग. रेकरिंग का मतलब ये होता है कि क्वोशेंट में या फिर एक नंबर या दो नंबर का सेट या तीन नंबर का सेट बार बार रिपीट करता रहता है. फॉर एग्जांपल 1.66666 या फिर 1.2727272 सो ऑन. लाइक दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेकरिंग. नॉन रेकरिंग में क्या होता है, नॉन रेकरिंग में डेसिमल एक्सपेंशन रुकती तो नहीं है बट रिपीट भी नहीं होती. फॉर एग्जांपल 1.243798601 डिफरेंट नंबर्स आते रहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस द नंबर्स हैव. अब इसमें से रैशनल नंबर्स की कौन सी डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं? रैशनल नंबर्स की होती हैं टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाली, रेकरिंग वाली.
ये रैशनल नंबर की होती है, ये भी होती है, और इसमें फर्दर ये वाला पार्ट होता है। जो नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो किसकी होती हैं? इररेशनल नंबर्स की। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। I'll take an example to solve this. Convert 0.888 to its standard form. तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि कितने डेसिमल्स रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास कितने डेसिमल्स रिपीट कर रहे हैं? ओनली 1 डेसिमल इज रिपीटिंग, दैट इज 8। अगर 1 रिपीट करता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 रिपीट करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 रिपीट करते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बट द स्टेप 1 इज इक्वेट अ वेरिएबल टू द गिवन डेसिमल नंबर। सबसे पहले आपने जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसे किसी वेरिएबल के को ले लेना है, चाहे एक्स के को ले लो, चाहे वाई के को ले लो, चाहे ए के को ले लो, किसी के भी को ले लेना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे जो भी आपने डेसिमल एक्सपेंशन से जज किया है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स को। अब मैंने y को 10 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 10y, but on the left hand side the decimal will move one step to the right hand side, hence giving me 8.888। अब मैंने 8 एक एक्स्ट्रा कहाँ से लिख लिया? बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो मैं इनफाइनाइट 8 लिख सकती हूँ। नाउ दीज आर 2 इक्वेशंस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का। हमने जो सेकंड इक्वेशन बनी है उसको ऊपर रखना है और जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है उसको नीचे सेकंड स्टेप पे रखना है और दोनों को माइनस कर देने। हमारा पर्पस एक्चुअली क्या है इसे करने का कि हमने बैक साइड पे किसी डेसिमल प्लेस तक ज़ीरोज़ बनानी स्टार्ट करनी है ताकि हमारे पास जो नंबर है वो रुक जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्टली डेसिमल के बाद वाली प्लेस से ही ज़ीरो आ गया है, that means 9y equals to 8, hence dividing 9 by 8 we are getting y equals to 8 upon 9। तो जब भी आप 8 को 9 के साथ डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.8888 सो ऑन। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ द मेथड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चे अब डेसिमल एक्सपेंशन से आपको क्या पता लगा कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रुकती है और ना ही रिपीट होती है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। दूसरी डेफिनेशन कौन सी हो सकती है? व्हेन द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। रैशनल नंबर्स के लिए क्या था? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, बट इरेशनल नंबर्स के लिए इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। एंड थर्ड वन, when it is a square root of a non-perfect square or a cube root of a non-perfect cube। मतलब कि अगर आपके पास अंडर रूट में कोई भी आप कह लो कि प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल लाइक अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ओके, अंडर रूट 3, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो बच्चे इससे हमें ये पता लगता है कि एक और सेट एग्जिस्ट करता है जो क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। हैंस we have seen that both rational numbers and irrational numbers can be represented on number line. Both the numbers together form real number system. That means real number system has its two members, one is rational numbers and another is irrational numbers. रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी होती है, लेकिन इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। और इस सेट को हम लेटर आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। बेटा ये जो टॉपिक है बहुत ही माइन्यूट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तक हमने ये सीखा था कि हम -4 को, 16 को, -3/4 को, 15/9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे।
बट इस मेथड से हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास 3-4 डेसिमल प्लेस तक कोई वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल 1.437 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इससे कैसे माइन्यूटली रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज 1.4 को तो देखो आप कर सकते हो, आपके स्केल के ऊपर भी होता है, आपने ज्योमेट्री में भी किया होगा, 1 और 2 के बीच जो 4th डिवीज़न होती है वो 1.4 रिप्रेजेंट करती है। बट सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जितने भी नंबर्स बड़े बड़े हैं हम वो सीख सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Since the number given is up to 3 decimal places, we would need to divide the portion between 3 and 4 into 1000 parts. But we already know that 3.657 lies between 3.65 and 3.66. Hence, we can divide that portion into 10 parts and then count up to 7 places from 3.65 to get 3.657. This method of magnifying a portion of the number line to get the closest value is known as successive magnification. It helps to represent any real number that is recurring and non-recurring with a decimal expansion on the number line. Let's quickly see another example. The distance between my house and the railway station is exactly 6.348 kilometers. Using successive magnification, this is where we can find this number on the number line. Found it? Isn't it amazing? So after successive magnification, we shall learn and have a recap of properties of operations on real numbers. Here you can see on the screen we have summarized the properties. First property में क्या है बेटा, अगर कोई भी नंबर्स अंडर रूट के बीच मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेटली अंडर रूट लग जाएगा और हम उन नंबर्स को सेपरेटली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 15, I'll show you again, that is under root 15 is equal to under root 3 into 5, or we can write here under root 3 into under root 5. So this is your first property. Second property आपके पास है डिवीज़न में, अगर कोई भी फ्रैक्शन दी होगी अंडर रूट में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ वो सेपरेटली हो जाती है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 5/3 दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 5 अंडर रूट 3. ओके, इन द थर्ड प्रॉपर्टी वी शैल अप्लाई द आइडेंटिटी, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी। a प्लस बी होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे a और b का अंडर रूट है, तो जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास वही नंबर आंसर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे a और यहाँ पे b आया है और 2ab की जगह पे 2 अंडर रूट ab आया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 4। अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स में डिफरेंट रूट्स हैं तो हम फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट मेंबर को दोनों मेंबर्स सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड मेंबर ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विल गेट मल्टीप्लाइड विद बोथ द मेंबर्स ऑफ सेकंड ब्रैकेट। And the last property is if two numbers are given same in both the brackets but the sign is different, then we shall do square of first number minus square of second number. This is all about operations on real numbers. Next topic is rationalization of denominators. हम डिनोमिनेटर्स की रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं बेटा? रैशनलाइजेशन मैं बता देती हूँ कि होती कहाँ पे है। जहाँ पे भी आपके पास अगर न्यूमरेटर में कोई भी अंडर रूट है, इररेशनल नंबर है, लाइक
दिस. अनदर एग्जाम्पल √2 4 ले लो यहाँ पे, माइनस √7 ले लो यहाँ पे. ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है. तो हमें उसे क्या बनाना पड़ता है, डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना पड़ता है. तो इस केस में हम रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर की, इसीलिए सिर्फ इसे रैशनलाइजेशन नहीं लिखा गया है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स. हाउ डू वी रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स. जब हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते हो तो सबसे पहले बेटा हमारे पास स्टेप 1 रहता है, वी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 + √3 दिया हुआ है. हम सेम ही नंबर रिपीट करेंगे लेकिन उसका साइन डिफरेंट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 - √3. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि द कॉन्जुगेट ऑफ 2 + √3 इज इक्वल टू 2 - √3. और यू कैन see here it is written a conjugate is an expression in which the operation between the two terms changes, addition changes to subtraction and vice versa. तो ऐसे हम conjugate find out करते हैं पहले. फिर बेटा conjugate के साथ ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम उस इक्वेशन में आइडेंटिटी अगर कहीं पे भी लगती है लगाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं. Here is the next topic, rational exponents. बेटा जैसे कि आपने क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पास का चैप्टर पढ़ा था, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ इनका नेम चेंज हो गया. इन्हें क्या बोला गया है, रैशनल एक्सपोनेंट्स. तो मैं एक बार आपको रिकैप करवा देती हूँ इसका. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ़ बोथ द बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. यहाँ पे डॉट का जो मतलब है वो है मल्टीप्लिकेशन. ओके, देन वी शैल टेक द सेम बेस एंड वी विल ऐड द पावर्स. हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड. बस इस केस में जो पावर्स हैं वो रैशनल नंबर्स ली हुई हैं. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर दी हुई है और उसकी ब्रैकेट लगा के होल पावर दी हुई है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर हमारे पास बेसिस सेम है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a raised to power p डिवाइडेड बाई a raised to power q. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस जो है, बेस क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर लगी हुई है तो इस नंबर को हम बेस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, पावर. ओके, बेसिस सेम है लेकिन पावर डिफरेंस है और नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं नंबर. उस केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी ये प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्लस हुआ था अगर मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का. पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट. द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस केस में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट लगा के पावर क्या ले लेंगे, कॉमन. ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको पेज पे देख सकते हो, विद एग्जांपल्स दी हुई हैं. गो थ्रू देम वेरी केयरफुली. So students, this is all about revision of chapter number 1. I have almost covered all the important topics in this video. Now for today, you shall revise chapter number 1 from both the books. In the next class, we shall continue revision for the next chapter. That's all for today. Happy learning!